Yes, folks. So, I welcome you all formally to this particular session. Now, the orientation of this particular session is that we will first discuss the UPSC CSE pattern. That how do we go about preparing? If you are just a second, folks. So I was saying that I welcome you all for this particular session, and because of space constraints, we could not have this on an offline mode. There were around 700 students who had enrolled for this particular thing, and we've already got 130 students on board. Now, what we are intending to do is that we will, and I'll be bilingual, folks. What we are intending to do is that with this particular workshop, I'm going to try to tell you about how you can prepare for UPSC CSE either for 2024 or for 25 or beyond, whether it's economics optional or non-economics optional depending on the audience, and what in what ways can we help you in that goal of yours. Brief background, some of you especially from Delhi School of Economics might not know, or from other universities might not know. I'm teaching economics at Delhi University for the last 9 years. I'm also a visiting professor at LBSNAA, where I teach the foundation course officers. And apart from that, I have a background. So people from Delhi School, I'm one of your seniors from 2009 batch, and then I have a master's in AI and ML, artificial intelligence and machine learning, and just I finished my law as well. So and apart from that, I come from the same background because I've written 5 mains during the last decade. So I've had more than a decade of prep in this particular phase, and the intention is to teach you from where I failed and from where I come from, what was missing in my prep, and I also kind of dovetailing the strategy of all the toppers, since most of the toppers are in touch because of my association at the institute. So therefore this is a program where we are trying to have the successful people on board, the unsuccessful people on board, and then try to leverage both of these things to basically advance your strategy for civil services. Apart from that, we'll also talk about the Indian Economic Services and other programs as well. So let's start. We will start off with the first program. The first program is basically how should you prepare for your CSE if you are preparing for 2024 attempt. So that will be the first goal. I'm going to pause for a minute and then I'm going to show my screen. Just in case if it's not visible, let me know. Just give me a second. I will talk about CUET as well. So I will be talking about, in the last part, I'll be talking about CUET entrance as well. So it's divided into 3 parts, folks. So let me just start with. Let me just open all the windows for you, so that just in case if anyone has it up, we can discuss. I hope you can see my screen. Is my screen visible? The PPT. Okay, great. So let's now discuss about this. So what we intend to do is, first I want to tell you about certain things with respect to So I wish to tell you about certain things, and then how to prepare for UPSC. Now the first thing is I will be telling you about how to prepare for 2024 attempt, since a lot of you have passed out this year. So my aim is to also tell you that how you can prepare your UPSC CSE alongside the year break that you're taking. Now अगर आप बात करो first 2 months की, so this is June and July. How can you prepare in June and July? The first thing that you need to do is that you need to have your optional intensive preparation. ये जो 2 months हैं, if you're targeting 2024 attempt, you cannot miss out on these 2 months where your optional should be strong. तो सबसे पहले हमारा target होगा, in fact our target till November will be to finish the optional,
because see, when you talk about, I hope that you are aware of how UPSC CSE works. You have this optional of 500 marks, and then you have these other papers of GS, which is your 1000 marks, and then you also have a essay of 250 marks. So इसमें this 1750 marks that you have there, in that 1750, if you get somewhere around 850 marks, 850 पे you are almost the topper. You will get into IAS with this for a general category student. The topper for this year is from Econ, in the sense that okay, so civil services examination, you have this preliminary phase, then you have this mains phase and the interview phase. Preliminary is the phase where you out of the 5 lakh students who appear for the exam, around 12,000 are shortlisted based on 2 papers. One is your CSAT paper, and the other is your GS paper. CSAT paper is just compulsory. You need to just pass it by 67 marks, but it's a very tough paper these days. And the GS paper is 100 marks, is 200 marks, where you need to score somewhere around 90-95 these days, and you can clear this. Out of the people who are writing mains, your mains marks will be calculated out of 1750. And of that 1750 marks, 500 will be your optional, whatever optional that you take. For example, if you are econ grad, तो अगर आप economics ले रहे हो तो economics के 500 marks, public administration ले रहे हो तो public administration के 500 marks. If you're taking sociology, तो sociology के 500 marks. So one optional you need to take, and apart from that, you need to also take. You have these 4 GS compulsory papers. Just have a look at it online. And then also after that you have your essay paper. Now what is the critical aspect here is कि यहाँ पर हमारा जो optional होता है वो completely in our hands. ठीक है, you can't control GS because उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं. You can't control essay, so you don't have development studies as your optional. So in that case, optional is something which is in our hand. 500 marks completely endogenous है. You need to prepare that well. तो जो भी आप optional ले रहे हो, अगर आप 2024 को target कर रहे हो, you will not be successful. Your probability for success will go drastically low अगर आपने November तक अपना optional नहीं complete किया. ठीक है, and that is also for 2025 batch वालों के लिए भी, that you cannot leave your optional for later. अब ये सोचो कि मैं prelims और mains के बीच में optional कर लूँगा, ये possible नहीं होगा. वहाँ पर सिर्फ आप strategy बदल सकते हो and value addition करना है. There is no point of writing mains. I'll provide the recording of this particular session as well. So see, there's no point of writing of clearing prelims if you're not able to clear mains. मैंने 5 बार mains लिखा है, but कोई फायदा थोड़ा ना हो, उसका कोई award थोड़ा ना मिल रहा है कि मैंने इतनी बार mains लिख लिया. So the idea is that how do we actually prepare well in terms of our strategy, so that हमारा जब प्री निकले तो हमारा मेंस भी निकल जाए उसके साथ. So this is the approach with which you should go. To people who are attempting 2024 बैच, जिन्होंने ईयर ब्रेक ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, एग्जाम के लिए, the first thing that you need to focus is your optional. तो आप optional को, whether you take coaching, whether you don't take coaching, that's up to you. I am personally in favor of people who do not take coaching. Why? Because आपका time बचता है. ठीक है, but आप दोनों चीज़ की तो आप कोचिंग बिल्कुल नहीं ले सकते. You can't think of taking coaching for both GS and your optional, क्योंकि अगर आप पूरे दिन कोचिंग के अंदर ही रहोगे तो आप पढ़ोगे कब? So that becomes a major problem when it comes to optional, when it comes to coaching. अगर आपको फिर भी कोचिंग लेना है, ठीक है, there are multiple institutes to provide you coaching. अगर आप न्यूज़पेपर उठा लो तो आपके पास multiple options मिल जाएंगे. My personal because of the fact that I've studied from that institute is Vajiram and Ravi. It's a good institute. It's not as if to say that other institutes like Vajiram, like Sriram or say Rao's are not great. All of them are good, but the fact is, coaching only provides you 5 to 6% of help. Less 95% help will come from you. The effort will come from you. See, I'm associated with Vajiram in the sense that I'm on their interview panel. तो जो interview के mock interviews जो आप देखते होंगे शायद से YouTube पे, I'm there in their interview panel, and I know कि वो कितने वहाँ पर उनके पास 20,000 या 10,000 बच्चे होते हैं हर बैच में. 10,000 बच्चों में से कितने बच्चे निकल रहे हैं? 200 बच्चे निकल रहे हैं.
एंड वो ओवर द ईयर्स है, तो अप्रोक्सीमेटली थिंक ऑफ द फैक्ट कि वो 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं तो 200 स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एंड दैट्स विद ऑल इंस्टीट्यूट्स. तो इट्स नॉट, दैट मीन्स टेकिंग कोचिंग इज नॉट अ सिल्वर स्पून. ठीक है, दैट आई मीन इट्स नॉट अ सिल्वर बुलेट दैट आपने बुलेट ले लिया और आपका हो गया. You need to work hard for your examination. Between coaching institutes, there is this lot of aspirants come to me and say कि सर बहुत सारे teachers वाजीराम से इधर या उधर चले गए. वाजीराम will remain वाजीराम. ठीक है, एक क्लास है उस इंस्टीट्यूट की. You will never see too many ads of that particular institute. साल में 1 या 2 ऐड देते हैं, वो अपने भरोसे में चलते हैं कि we will still fill seats. ठीक है, बाकी लोग ल्योर करके वो व्हाट इज दिस सोशल मीडिया और ये जो है ये सब कुछ ल्योर करके दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट्स, ट्राई टू बाय टीचर्स एज वेल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, इफ यू वांट अ कोचिंग देन वाजीराम इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर. बट अगेन इफ यू आर गोइंग फॉर कोचिंग, प्लीज डू नॉट गो फॉर ऑप्शनल साथ में, कि ऑप्शनल का कोचिंग और जीएस का कोचिंग साथ में लोगे. यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट इफ यू आर टारगेटिंग 2024 अटेम्प्ट. 25 का अटेम्प्ट कर रहे हो, 26 का अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट 24 के साथ तो यू कांट मैनेज. 2 कोचिंग्स कैन नॉट बी मैनेज्ड. एंड इफ यू आर गोइंग फॉर कोचिंग, टेक 1 कोचिंग ओनली. सीसैट की कोचिंग की अभी रिक्वायरमेंट नहीं. The other thing is if not coaching, then how you can prepare? You can very well prepare on your own. आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, और अगर कोचिंग ले रहे भी हो तो भी आई वुड सजेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स, डू नॉट टेक ऑफलाइन कोचिंग. ऑफलाइन कोचिंग में मैं इतने सारे स्टूडेंट्स जानता हूँ. मैं आपको कल जब टॉपर्स टॉक कराऊंगा तो मैं आपको बहुत सारे टॉपर्स की बात बताऊंगा कि कैसे वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर. दैट एरिया इज आई मीन इट्स वन ऑफ द वर्स्ट एरियाज टू लिव इन. आपके पास पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, कोई और सपोर्ट नहीं है, द रेंट्स आर टू हाई. आपकी जितनी कोचिंग की कॉस्ट नहीं, उससे ज्यादा कॉस्ट वहाँ पर रहने की है. एंड द एनवायरनमेंट इज वेरी डिप्रेसिंग. Trust me folks, I've stayed there for so many years. I know how depressing that area is. तो अगर आपको लेनी भी है तो आप ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, एंड अगर आप किसी के साथ बैठ के कर सकते हो, 2 लोग एक साथ बैठ के कर सकते हो, that's great. But I would not suggest this thing. And just in case if you are applying for Wajiram and you're not able to afford it, you can always write it to me. I will probably help you with some kind of discount if you're from an EWS category, if you're from a reserve category and you're not able to afford the entire amount. I am helping a lot of students for getting discounts since I'm associated in their interview panel, and they kind of respect with that fact that I recommend good candidates there who are in need. But again, मेरा first preference is don't take it. ठीक है, जरूरत नहीं है, उसके बिना आराम से हो सकता है ऐसा. जरूर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बिना कोचिंग के भी प्रिपेयर करते हैं. इफ नीड इज देयर देन यू कैन थिंक. ऑप्शनल के केस के अंदर यू माइट नीड हेल्प, स्पेशली इन टेस्ट सीरीज. तो आपको टेस्ट सीरीज के केस में शायद से आपको हेल्प चाहिए हो कोचिंग की, और साथ में हो सकता है आपको कोचिंग की भी रिक्वायरमेंट हो अगर वो आपका नेटिव सब्जेक्ट नहीं हो. नाउ व्हाट इज दिस नेटिव सब्जेक्ट? जैसे इस साल की जो टॉपर है, तो इस साल की जो टॉपर है, शी इज फ्रॉम SRCC इकॉन बैकग्राउंड, और उसका ऑप्शनल क्या है? उसका ऑप्शनल इज PSIR, पॉलिटिकल साइंस. सो शी टुक शुभ्रा रंजन मैम्स कोचिंग. सो that's another area that you can look for if you are switching your graduation subjects. बहुत सारे students anthropology भी ले रहे हैं, बहुत सारे students PSIR भी ले रहे हैं. तो अगर आपका वो native subject नहीं है then you can think of a coaching. But again, let me give you the red herring warning that coaching is not mandatory. You can do it by yourself. What is mandatory is test series. टेस्ट सीरीज के बिना अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपको इवैल्यूएशन ही नहीं पता कि आप आंसर कैसे लिख रहे हो, तो टेस्ट सीरीज जरूरी है. बट लेट्स फोकस ऑन पहले मैं 2024 एंड ये सारे आपके डाउट्स आई टेक. बट पहले हम 2024 का अटेम्प्ट देखते हैं, जो लोग नए आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और इस प्रेप के अंदर, हाउ यू कैन प्रिपेयर. सो द फेज 1 इज वेयर यू नीड टू फोकस ऑन योर ऑप्शनल. आप अपना ऑप्शनल जो भी, अगर आप आपका नेटिव ऑप्शनल है तो आप अपने सारी बुक्स इकट्ठे कीजिए, आप अपना सिलेबस देखिए क्या सिलेबस है, एंड देन ट्राई टू सी यूपीएससी का सिलेबस एंड वो मैच करके यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. बट बिफोर प्रिपेयरिंग यू ऑल्सो नीड टू हैव द बुक लिस्ट ऑफ टॉपर्स. 10 टॉपर्स ले लीजिए पिछले 3 सालों के, एंड उनका बुक लिस्ट, उनकी स्ट्रैटेजी आप अपने एक वर्ड फाइल में बनाइए. So don't try to remake the wheel. अगर if someone is successful, follow their strategy ना, और
3-4 लोगों की लोगे हर साल की, you will be able to do that. Tanishka, there's no passcode needed for this. 500 students can easily join in. You just need to click on the this thing and you will be able to join. So now what needs to be done here is that आप अपना सबसे पहले 3 महीने पहले तो आप ऑप्शनल फिगर आउट कीजिए, एंड अगर आपका नेटिव ऑप्शनल नहीं है तो आप उसका कुछ एनसीईआरटी पढ़ के दीजिए, कुछ बैकग्राउंड पढ़ के दीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं बिकॉज इट्स अ सक्सेस रेट इज डिसेंट. बाय द वे अगर आप सक्सेस रेट की बात करो तो इस साल लॉ का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, एंड मेडिकल साइंस का, दो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट होते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजिंग ऑप्शनल, तो आप पहले अपना देखिए कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है भी या नहीं है. और अगर आप नेटिव अपना ऑप्शनल ले रहे हैं जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी है, दैट्स द बेस्ट केस, क्योंकि आपका 50-60% ऑप्शनल ऑलरेडी हो गया. एंड आई विल बी डीलिंग विद इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, हाउ यू कैन प्रिपेयर विद इकोनॉमिक्स, बट फर्स्ट दिस एस्पेक्ट. सो आप पहले 2 महीने में अपना ऑप्शनल का इंटेंसिव स्टडी आप बनाना शुरू करेंगे. आप अपनी एटलीस्ट 20-30% जो अपने कोर्स का आप यू विल ट्राई टू कवर इन दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ योर ऑप्शनल. देन जीएस फंडामेंटल्स. What do we mean by GS fundamentals? We mean by basic books that you need to study. For example, आपने क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, तीनों जो आपकी एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न है. आपको ज्योग्राफी की 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी की पुरानी एनसीईआरटीज पढ़नी है 6th से लेके 8th तक. So these are basic books that you need to cover before you go for a deep dive into UPSC. ठीक है. और लक्ष्मीकांत, ये बेसिक किताबें हैं जो आपको करनी है. एक रीड आपको देना है, क्विक रीड देना है, आपको नोट्स नहीं बनाने. मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग नोट्स प्लीज. मैं आपको ये बार बोलूंगा, ये जो पहले बार पढ़ते के साथ ही नोट्स बनाना शुरू करते हैं, आपके ऑलरेडी किताब बनी हुई है, उसके नोट्स मत बनाओ. बाद में आप नोट्स बनाना, सेकंड रीडिंग के बाद नोट्स बनाओ, और मैं बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं. बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बनाने हैं. लक्ष्मीकांत 1000 पेज की किताब है, मेरे पास 20 साइड्स में पड़ी है वो किताब. उस तरीके से आपको नोट्स बनाने. नोट मेकिंग एक आर्ट है जिसको बोलता हूँ मैं चीट नोट्स. आई टॉक अबाउट दैट चीट नोट्स. जो होता है ना, आपने शायद से सुना होगा फर्रा बनाना, फर्रों की तरह नोट्स बनाने होते हैं आपको, क्योंकि आपको वो नोट्स बार रिवाइज करना, आपके पास टाइम नहीं होगा एंड में, तो आपको बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बनाने हैं बार. ठीक है. तो जो स्टूडेंट बहुत अच्छे फर्रे बना सकता है ना, वो स्टूडेंट बहुत अच्छे यूपीएससी के नोट्स बना सकते हैं. सिर्फ काम की चीज चाहिए वहां पर. आप वहां पर लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, इंग्लिश नहीं यूज कर सकते. सो दैट्स वन थिंग. तो ये प्रोसेस आपका 2 महीने दिस इज बेसिकली सॉफ्ट स्टार्ट दैट यू आर गोइंग कि अच्छा ठीक है हम प्रेप के मोड में, और इस टाइम पे बड़े आप एक्साइटेड भी होंगे इस वाले मोड के अंदर कि वाह अब एक्साइटमेंट है, हम आईएएस बन जाएंगे. हिमांशी आई टॉक अबाउट सेकंड ईयर एज वेल. मैं अभी इसके बाद 2025 एंड 26 के बारे में बात करूंगा. अभी मैं इसके बारे में बात करूँ, बट जो भी 25 एंड 26 के लिए भी करेंगे उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज दिस. नाउ देन what you need to do is the second phase. Second phase में आप क्या करोगे, आप अपना ऑप्शनल का इंटेंसिव फेज शुरू करोगे, where you will have to in these 3 months you will have to complete your optional. 5 महीने आपके पास, 5 महीने में अच्छे से अच्छा ऑप्शनल, अगर आपको जीरो भी पता है ना उस ऑप्शनल का, तो आप कर सकते हो कंप्लीट. 5 महीने ज्यादा किसी ऑप्शनल में नहीं रखते, चाहे वो PSIR ही क्यों ना हो. PSIR भी आप अगर आप कोचिंग भी ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको 5 महीने में ऑप्शनल खत्म करना है. ठीक है. अपने आप से अगर कोचिंग ले रहे हो तो वो आपके लिए एड ऑन फैक्टर. फिर उसके साथ में जीएस एडवांस करना है. नाउ व्हाट इज जीएस एडवांस? योर अदर टेक्स्ट. फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के लिए आई विल सेंड यू अ लिस्ट ऑफ बुक्स दैट यू नीड टू डू. फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के लिए आपको प्रेम पटेल, मैपिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैपिंग के आप प्रेम पटेल पढ़ोगे. आप क्या कहते हैं वर्ल्ड मैप के लिए आप एटलस देखोगे. मेरे कुछ नोट्स हैं वर्ल्ड मैप के, पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स का. आई विल सेंड यू दोस नोट्स, वो आप देखोगे. फिर उसके अलावा आप देयर इज दिस बुक कॉल्ड टेरियर फॉर इंडियन ज्योग्राफी, आपको वो देखना है. एक जीसी लियोंग है ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की, वो आपको देखनी है. तो ये जो बेसिक टेक्स्ट हैं ज्योग्राफी के, आपको ये करने हैं. फिर उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए पीएमएफ आईएएस के बड़े अच्छे बुक है. पहले लोग शंकर आईएएस पढ़ते थे, आज की डेट में पीएमएफ पढ़ते हैं. एक जगह एक सोर्स पकड़ लो, 50 सोर्स मत पकड़ो, एक सोर्स पकड़ो, बट उसको अच्छे से 3-4 बार पढ़ लो. बट हो सकता है उससे भी ना आए, उसके अलावा भी आपको करना पड़ जाए. फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर्स पेपर यू हैड टू डू अदर थिंग्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल एक वो आती है बैक टू नेचर, नो आई एम फॉरगेटिंग, डाउन टू अर्थ का एक यूट्यूब चैनल है और उसकी एक मैगजीन आती है, तो आप यूट्यूब चैनल उसका देख सकते हो. थोड़ा बहुत डिस्कवरी का देख सकते हो. बट डोंट ट्रबल योरसेल्फ, क्योंकि हमें पूरे 100 क्वेश्चन नहीं पता होने चाहिए. हमें
हमें अराउंड 75 to 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बाकी क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन है वो। तो आप जो भी चीज करोगे उसको 5 से 7 बार रिवाइज करोगे, रादर देन you are not supposed to just keep on increasing the circumference of your preparation. We are going to restrict our course to certain texts and revise that properly. Then history के लिए आप NCERTs तो आप देखोगे, आप तमिलनाडु बोर्ड की भी आप NCERT देखोगे, और उसके अलावा you will have spectrum as well. तो और मेंस के लिए देखेंगे तो विपिन चंद्रा भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो हमें हिस्ट्री के लिए ये भी देखनी है। फिर उसके बाद हमें आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया देख सकते हो। इफ यू वांट टू सी इकोनॉमी के लिए यू हैव माय लेक्चर्स, आई विल रिकॉर्ड अ लॉट ऑफ माय लेक्चर्स, दैट विल बी दैट आई वुडंट से दैट विल बी सफिशिएंट, बट आई वुड से दैट शुड गिव यू अ गुड हेड्स अप। एंड साथ में अगर आप एक किताब फॉलो करना चाहते हैं तो आप नितिन सिंघानिया इज ए 2013 बैच IAS ऑफिसर, उसकी किताब मुझे अच्छी लगी। You can have a look at Nitin Singhania's economics book as well. But उससे आपका होगा नहीं, आपका बेसिक्स होंगे, और मेंस तो आप बिल्कुल नहीं लिख सकते इन किताबों से, मेंस तो आप बिल्कुल नहीं लिख सकते, आपका प्रीलिम्स के एस्पेक्ट काफी कुछ। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट जब नेक्स्ट ईयर आएगा उसकी मैं सेशंस लेता हूँ, तो यू कैन अटेंड दोस सेशंस एज वेल। तो वो आपको चीजें इकोनॉमिक्स के लिए करनी है। साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स करना है आपको, तो ये सारी चीजें हमें करनी है। बट उसके अलावा एक I'll tell you about this D3 प्रोग्राम जिसमें मैं मॉर्निंग में सेशंस देता हूँ, उसके अंदर हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं। you can see that program as well. तो हमें यहाँ पर जो फोकस है, हमें जीएस का एडवांस लेवल करना है, हमें अपने जीएस के सारे फंडामेंटल्स सारे सब्जेक्ट्स के क्लियर करने हैं, हमने उनकी सेकंड रीडिंग पूरी की पूरी दे देनी है। एंड 10 years जब भी हम कोई सब्जेक्ट करेंगे तो उसका PYQ देखेंगे कि आर वी एबल टू सॉल्व इट और नॉट। चाहे आंसर देख लो बीच में कि अच्छा ठीक है मुझे इतना आया इतना नहीं आया, बट यू शुड हैव अ लुक towards PYQ as well. You should have one eye towards PYQ and the other eye towards your books. That is how your prep should be. And optional में तो बिल्कुल ही अलग है, optional में पहले PYQs देखोगे, फिर पढ़ोगे, फिर वापस PYQ देखोगे। तो इस प्रोसेस में you will take 3 months for this. अक्टूबर तक अगर आपने अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया, your aim should be 50% time to your optional. अगर आपने ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया, एंड मैंने से ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया, व्हाट आई मीन इज कि आपने ऑप्शनल करके उसके 10 years देख लिया, उसके रफ 10 years लिख लिए, you are almost prepped. You are almost. I will share the groups links as well. उसपे you can just message me if you are not on those groups. UPSC CSE groups हैं हमारे, और economics optional के groups हैं. You can just message me. I'll add you to those groups. उसके ऊपर I'll put all the syllabus, all the book lists. And मेरी book list से कुछ नहीं होगा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, बट आपको मैं जो कह रहा हूँ वो भी देखो, जो टॉपर्स कह रहे हैं वो भी देखो, एंड सी व्हाट फिट्स यू वेल। किसी की बुक लिस्ट से क्या, मेरी एक बुक लिस्ट कोई वो थोड़ा ना है कि कोई ब्रह्मा जी ने मुझे बुक लिस्ट दी और वही आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी है, ठीक है। तो मेरा अपने एक्सपीरियंस से मेरी बुक लिस्ट है, आप किसी और टॉपर की उसके एक्सपीरियंस से बुक लिस्ट है, आपको जो ठीक लगता है मिक्स एंड मैच करके आप अपनी बुक लिस्ट बना लो, और जब आप टॉपर बन जाओगे तो आपकी एक बुक लिस्ट आ जाएगी। सो थिंक रैशनली कि यू कांट हैव कि यही एक बुक लिस्ट है, यही एक किताब है जिससे सब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डोंट थिंक ऑफ कि ये किताब हो जाएगी जिससे काम हो जाएगा। तो दैट इज नॉट, लोग कहते थे कि विजन का PD 365 पढ़ लो और उससे आपका सारा करंट अफेयर हो जाए, इस साल सॉल्व करके देख लो जरा इस साल के पेपर से कि अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आप एक सोर्स से सोचो और ये मेरा रामबाण है जिससे सब कुछ हो जाए। दैट इज नॉट हाउ UPSC वर्क्स, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ फेलियर्स एंड लॉट ऑफ सक्सेस। प्रीलिम्स 2 महीने ठीक से प्रीलिम्स पढ़ोगे हर बार क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स 2 महीने से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप राइट स्ट्रैटेजी से हो, ठीक है। तो आई टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट my what I'm trying to tell you is, I'm recording this session आस्था, what I'm trying to tell you is जिस भी साल में अटेम्प्ट देने वाले हो, चाहे वो 26 में अटेम्प्ट हो, चाहे वो 24 में हो, चाहे वो 25 में, उससे पहले वाले साल में बाय नवंबर योर ऑप्शनल शुड बी कंप्लीट विद योर 10 years। अगर ये नहीं है यू आर गोइंग टू स्ट्रगल, आपको बार बार पेपर लिखना पड़ेगा। तमीज की बात यह है कि इफ यू आर राइटिंग मेंस यू शुड गेट इनटू IAS और IFS। You should not be in that cycle of repeating the paper again and again, and that is only possible अगर आपका मेंस का ऑप्शनल अच्छे से है। उसके अलावा एसे और एथिक्स में हम काम कर लेंगे। अगर ये आपके 1000 नंबर जो है एसे और एथिक्स का 250 ऑप्शनल के 500, अगर ये 1000 नंबर आपके रेडी हैं, उसमें से आप 550 मार्क्स अगर आप ला सकते हो, 550 मार्क्स अगर आप ले आए,
तो आपका IAS पक्का है, क्योंकि बाकी 3 पेपर्स में नंबर आ जाते हैं। बाकी 3 पेपर्स में ऐसा नहीं है, यूजुअली सबके 100 मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका आराम से 850 मार्क्स बन जाएंगे, एंड विद 850 मार्क्स यू आर इनटू IAS। सो दिस इज I will suggest a little bit of change in strategy that I'll come to. Then comes your phase 3. ठीक है, phase 3. People who are going to attempt in later years as well can note this strategy. ठीक है, क्योंकि आपको भी कभी ना कभी तो आप यहाँ पर आओगे इस strategy के ऊपर। Then phase 3 is November to January. इसके अंदर आपको सिर्फ आंसर्स, आपको टेस्ट सीरीज लिखनी है अपने ऑप्शनल की, whatever subject you take, आपको टेस्ट सीरीज लिखना है और वैल्यू एडिशन लिखना है। देखो जितने भी लोग मेंस लिख रहे होंगे, चाहे वो PSI और ऑप्शनल से हो, इकोनॉमिक्स से हो, सोशियोलॉजी से हो, उनको आता है, उनमें दिमाग है, तभी वो PT क्लियर कर रहे हैं। बिना दिमाग के, बिना रटे, बिना समझे PT क्लियर नहीं होता है। तो दैट मीन्स वो सारे, उन सबके बीच में जो बैंडविड्थ ऑफ मेंटल स्पेस है वो बहुत कम है। सब में सिमिलर दिमाग है और सब कुछ लिख सकते हैं, बट हाउ विल यू मेक योर आंसर डिफरेंट? टीना डाबी और रिया डाबी कैसे बने? Which because of this value addition। ये रैंक 1 जो है, रैंक 2 है, ये कैसे बनते हैं? क्योंकि इनका वैल्यू एडिशन। और आप वैल्यू एडिशन कैसे देखोगे? I'll just show you। ये देखो, इनकी सबकी कॉपीज मिलती है। आप राजेंद्र नगर जाओगे, आप टेलीग्राम पे जाओगे, आपको सबको मिल जाएगा। श्रुति शर्मा, टॉपर, फोरम IAS, विजन IAS, इन सबकी आंसर कॉपीज मिल जाएंगी, ऑप्शनल की कॉपीज मिल जाएंगी। आप इनके एक बार आंसर देख के तो देखो, कितने अच्छे लिखते हैं ये लोग, तभी तो बने हैं। आप श्रुति शर्मा के एसेस की आप वो देख लो, वो हर ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ फिलॉसफी लेके आती है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्या कहते हैं, उसने उसको भी लिंक करा हुआ है, इंडियन क्रिकेट से भी कहीं जगह किसी चीज को लिंक किया हुआ है। तो दिस इज हाउ यू शो द ब्रेथ ऑफ योर आंसर्स, यू शो कि आप, मैं कितना वेल रेड हूँ। तो ये वाला टाइम है जब आप वैल्यू एडिशन करोगे। हाउ विल यू मेक योर सेल्फ द टॉप 1% इन योर ऑप्शन? तो वो वैल्यू एडिशन वाली चीज आपको अपने आंसर राइटिंग से करनी है। और नेक्स्ट चीज जो आपको काम करनी है वो आपको एसे और एथिक्स पे करना है, जिसमें एसे में आप प्रैक्टिस करोगे अपने एसे की। आपको एसे के लिए कोई ऑनलाइन हेल्प लेनी है वो आप ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सेम एथिक्स के लिए माय पर्सनल सजेशन विल बी, there was a student that I taught at LBSNAA last year, 2021 बैच का 18th रैंकर है, सार्थक अग्रवाल। ही इज एन SRCC econ honors grad and economics optional से ही cleared the exam and he is one of the toppers of ethics। तो उसका एक बार स्ट्रैटेजी सर्च करना, उसमें आपको गूगल पे मिल जाएगा। एंड दिस ईयर ऑल्सो आई आस्क्ड द टॉपर, जो एथिक्स के टॉपर्स हैं, व्हाट इज देयर स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन हु स्कोर्ड 140 दिस ईयर इन एथिक्स। आई आस्क हर, एंड उसका एसे में भी बहुत अच्छा मार्क्स, आई आस्क हर टू शेयर हर स्ट्रैटेजी एज वेल। एंड बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट स्टिल शी कैन शेयर हर स्ट्रैटेजी। सो ऐसे और एथिक्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर फोकस करना है, बिकॉज यहाँ पर ही मार्क्स चेंज होते हैं। आई नो स्टूडेंट जिसका मार्क्स हर चीज में बहुत अच्छा है, बट एसे में उसके 70 मार्क्स हैं, और अगर उसके एसे में उसके 70 की जगह 140 मार्क्स होते तो ही वुड हैव बीन रैंक 2। उसका इतना डिफरेंस आ जाता है रैंक के अंदर। तो ये यहाँ और अभी सिलेक्शन हो गया, बट उसको फिर से पेपर लिखना पड़ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एसे और एथिक्स के अंदर ना जो वेरिएशन इन मार्क्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कोई बहुत खराब लिखेगा, कोई बहुत अच्छा लिखेगा, कोई सेट पैटर्न नहीं है एसे और एथिक्स का। तो इसीलिए आपको इस पे करना है। और माय पर्सनल सजेशन इज, मैंने 2-3 टॉपर्स का देखा है, दे ऑल्सो हैव दिस फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड, और ऑप्शनल और जो एसेस भी आ रहे हैं थोड़े फिलोसफिकल आ रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर स्पेशली अगर आप 25 या 26 अटेम्प्ट की, तो आप कुछ फिलोसफीज पढ़ लो, जैसे फॉर एग्जांपल जैनिज्म की फिलोसफी, बुद्धिज्म की फिलोसफी, चरवाका की फिलोसफी, कुछ फिलोसफीज जो हैं ये आपके पास आइडिया होना चाहिए हाउ टू राइट। एंड आई वुड से कि टॉपर्स की खूब सारी कॉपीज पढ़ो, आपको एक आइडिया लगना शुरू हो जाएगा हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग। ठीक है, एथिक्स की बेसिक टेक्स्ट तो है, बट व्हाट इज द वैल्यू एडिशन दैट यू नीड टू डू। सो ऐसे एथिक्स के ऊपर आप फोकस यहाँ पर आप करेंगे। और जीएस में आंसर राइटिंग, स्पेशली डेली आंसर राइटिंग आप करोगे यहाँ पर, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स ऑलरेडी रेडी है, यू हैव ऑलरेडी डन योर फंडामेंटल्स। आपको इनसाइट्स ऑन आईएएस में क्वेश्चंस आते हैं, क्या कहते हैं, और सारी वेबसाइट्स पे क्वेश्चंस होते हैं। टेक अप सम क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस। रोज 3-4 क्वेश्चंस देखो। आपको मेंटल, you should have that mental habit of writing answers। पहले खराब लिखोगे, बाद में अपना आप ठीक होना शुरू हो जाएगा, but have that habit of writing answers in these 3 months। And then comes your phase 4, where you will start your prelims का पूरा prep। Here you will have to focus on your prelims focus। आप crisp notes बनाओगे, जिसको मैं बोलता हूँ cheat notes।
ये वाला टाइम है, इस 2 महीनों में आपको हर टॉपिक के आपको चीट नोट्स रेडी हो जाने चाहिए। अगर आपने यहाँ पर फेज 2 में नोट्स नहीं बनाया तो आप यहाँ पर आप चीट नोट्स बनाना शुरू करो इन 2 महीने में, स्पेशली फोकसिंग ऑन 4 टॉपिक्स, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमी, द सेकंड इज पॉलिटिक्स, पहले पॉलिटी लेते हैं, पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री एंड देन इकोनॉमी। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर आप चीट नोट्स बनाओगे आपके। यही मैं कुछ पेजेस हैं 150 पेजेस में अपने सारे नोट्स बना लिए और इन्हीं को मैं बार बार रिवाइज करूँ, ठीक है। और ये इसी टाइम बनाने चाहिए क्योंकि इस टाइम पे ही आपका सबसे अच्छा रिवीजन शुरू होगा। ये आप तीसरी बार पढ़ रहे होगे टॉपिक्स को, एंड आप जैसे ही एक पर्टिकुलर टॉपिक करोगे तो आप उसके PYQs देखोगे, आप उनको सॉल्व करोगे एंड आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट। इन सेक्शनल टेस्ट में कई सेक्शनल टेस्ट बहुत ही अजीब व गरीब होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ कोचिंग्स के जो टेस्ट हैं उनके साथ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। फॉर एग्जांपल विजन के पिछले 1-1.5 साल से टेस्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे ले रहे हैं। फोरम की मुझे टेस्ट समझ नहीं आ रहे। वाजीराम के टेस्ट इस साल मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो यू कैन थिंक ऑफ वाजीराम के टेस्ट। वेदर यू टेक अप अ टेस्ट सीरीज और नॉट, दैट इज अप टू यू, बट व्हाट यू नीड टू सी इज कि आपकी अप्रोक्सीमेट रैंक कितनी आ रही है, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट मार्क्स से मतलब नहीं है, हमें रैंक से मतलब है कि हाउ वेल एम आई डूइंग इन टर्म्स ऑफ माय परसेंटाइल, दैट नीड्स टू बी डन। एंड आप स्वॉट एनालिसिस करोगे कि कौन से सेक्शंस मेरे स्ट्रॉन्ग है, कौन से सेक्शंस मेरे वीक हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल वर्क। इस पोर्शन में आप अपना करंट अफेयर्स भी रिवाइज करोगे। आई विल टेल यू द स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स एज वेल। आप अपना भी करंट अफेयर्स रखोगे और आप जो मंथली कंपाइलेशन है उनको भी ऐड करोगे, and you add them and then start reading both of these things in this particular phase, and alongside आप CSAT के basics शुरू करोगे। CSAT has become really tough from the last 2 years। तो यहाँ पर आप CSAT को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ पर CSAT में you need to pick up 10 topics in maths and then do them। Time, speed and distance, time and work, number systems, permutation, combination, probability, mixtures and allegation, then you can think of say geometry आप छोड़ सकते हो। Say pick up couple of more topics that percentages, very important, percentages। So these are certain topics that you pick up these 10 topics and then do them well। अगर आपको यहाँ पर help चाहिए तो यहाँ पर you can take up a coaching if you feel that your maths is extremely weak, but अगर आपकी maths decent है then you can do it by yourself। Plus इस बार even logical reasoning has become very tough, तो आपको लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन उसी तरीके के आपको देखने पड़ेंगे। इसमें आपको 2 मंथ्स लगेंगे बेसिक चीजें करने में, एंड देन कम्स योर फेज 5 व्हिच इज जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, वेयर यू नीड टू फोकस ऑन 3 to 4 रिविजन्स ऑफ योर नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट एंड CSAT प्रैक्टिस। यहाँ पर आपका पूरा सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर फोकस रहेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ये ऑल इंडिया मॉक्स लेते हैं, फ्री में लेते हैं, इनका यूज करो ना। ऑल इंडिया मॉक्स सारे के सारे इंस्टीट्यूट लेना, तो सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स का दो, बट डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट UPSC नहीं है, ये अपने तरीके से पेपर बनाते हैं, बट एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि ऑन अ रिलेटिव सेंस हाउ आई एम डूइंग, तो इसलिए वो हेल्पफुल हो जाता है। सो बट आपको यहाँ पर 4 रिविजन देने हैं टोटल। जब आपने 5 से 6 रिविजन दे दी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां पर आंसर निकाल पाओ। UPSC 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे बनाता है जो इजी होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट 30 to 40 questions are those which require a little bit of application of mind या फिर a little bit of guesswork या elimination। और ऐसा नहीं है कि elimination खत्म हो गया इस साल भी elimination है, आपको बस eliminate करने का तरीका पता होना चाहिए। That I'll talk about in my sessions as well। तो यहाँ पर आपका प्रीलिम्स के आपके पास 4 रिविजन होना चाहिए, और तब तक आपके 6 रिविजन हो चुके होंगे, और जब तक आपके 5 से 6 रिविजन नहीं होंगे आपको आता होगा, बट आप गलती कर दोगे क्योंकि वो रिविजन का प्रॉब्लम है। तो गलती करने की भी चीजें हमें समझ में, आपकी गलतियां जब आप एनालाइज करोगे तो यू विल बी एबल टू एनालाइज कि व्हाई एम आई डूइंग अ मिस्टेक। डूइंग अ मिस्टेक इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एनालाइजिंग व्हाई यू आर डूइंग इट एंड रेक्टिफाइंग इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इन दिस फेज। एंड देन कम्स योर फाइनल फेज ऑफ दैट इज योर जून टू सितंबर, व्हिच इज योर फेज 6 ऑफ आप मेंस के ऊपर काम करोगे। आप अपने ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज लिखोगे और वैल्यू एडिशन करोगे। ये सिर्फ मेंस के करने का है। मेंस के कुछ टॉपिक्स हैं जो प्री में नहीं है, आप वो पढ़ लो, जैसे सिक्योरिटी हो गया, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो माइनर टॉपिक्स हैं, वो आपको करने हैं। एंड ऑप्शनल का आप टेस्ट सीरीज एंड वैल्यू एडिशन करोगे। GS की आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। वीकली आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि ऐसे में हमें मार्क्स अच्छे चाहिए, और एथिक्स के ऊपर आपको एथिक्स की भी टेस्ट सीरीज लिखनी है। तो हमें ये जो है एथिक्स, एसे और अपना ऑप्शनल, इन पे अगेन बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इन 1000 नंबर में अगर आपके 550 आ गए, 300 इन ऑप्शनल
एंड 250 ईच टोटल मिला के अगर आपका 250 एथिक्स में बन गया, एथिक्स और ऐसे बन गया, आपका सिलेक्शन पक्का है 100%, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन उस अटेम्प्ट में। और जीएस की टेस्ट सीरीज लगाओ और फिर 3.5 मंथ्स में ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। सो इररिस्पेक्टिव आप जिस भी साल में पेपर दे रहे हो, दिस इज द पैटर्न दैट यू नीड टू फॉलो फॉर योर अटेम्प्ट। अगर आप इससे ज्यादा डिविएट करोगे तो you will have this problem. I'll show you all the phases. I'll send you a screenshot of this on your groups as well, so that you are able to understand कि हमारा ये प्लेटफॉर्म क्या है। बट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और ये मैंने स्ट्रगल किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले 2 ऑप्शनल होते थे, आज से कुछ साल पहले 2 ऑप्शनल होते थे, मैं उस वाले फेज से हूँ। मैं हर साल अपना ऑप्शनल चेंज करता था। मेरे पास पहले, और मैं इसीलिए बाय द वे मेरा इसीलिए पेपर क्लियर हो जाते थे जीएस का, क्योंकि मैंने ऑप्शनली इतने सारे पढ़े हुए हैं। मेरे पास पहले अटेम्प्ट में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी था, तो मेरा ज्योग्राफी भी स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिक्स भी स्ट्रॉन्ग। फिर अगले अटेम्प्ट में इकोनॉमिक्स और पबैड आ गया, पबैड स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में इकोनॉमिक्स और फिलोसफी आ गया, तो फिलोसफी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो धीरे धीरे करके मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ लिए थे कि मुझे पीटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। पीटी में 2 महीने 1.5 महीने पढ़ के निकाल देता हूँ। एंड इनफैक्ट जो हमारे सेशंस है उसमें मैं आप एक स्टूडेंट से मिलवाऊंगा अपने, his sister is in Indian Economic Service, she is also a student of mine from Gargi. Now her brother has last year 3 महीने पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले वो इंडिया में नहीं था, जनवरी में इंडिया में आया, 3 महीने पढ़ा और पीटी का पेपर 1 में 110 और पेपर 2 में 0.66 मार्क्स रह गया। इस साल he studied for approximately 20 days and still he is able to clear prelims. तो ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स नहीं कर सकते, इट्स जस्ट द अप्रोच विद व्हिच यू, आपका अगर मेंटल फ्रेमवर्क स्ट्रांग है तो आप ये पेपर निकाल सकते हो। अगर आप ये डर नहीं रहे, बहुत सारे लोग तो डर से पेपर, जहां आप डर गए इस पेपर से वहां आपको ये पेपर हराएगा। और मैं हमेशा मेंस से डरा हूँ, क्योंकि मेरे मेंस में कभी भी मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। प्रीलिम्स में कभी नहीं डरा हूँ, इसलिए प्रीलिम्स में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट इज योर मेंटल स्ट्रेंथ शुड बी वेरी स्ट्रांग फॉर दिस पर्टिकुलर। अगर आप मेंटली वीक हो तो आप ये पेपर निकाल नहीं सकते, और इस पेपर में आप रोगे तो 100%, ठीक है, अच्छे से अच्छा कोई पेपर उठा देता है। सो दैट इज वेयर माई जो mentorship that I provide is mainly on that mental aspect of this paper rather than the academic aspect. Now coming to बहुत सारे students यहाँ पर are from the other batch which people who are 2025 और 26 के बैच के, स्पेशली जो आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जा रहे हैं, उनके लिए इफ यू आर टारगेटिंग सीएसई, देन व्हाट यू नीड टू डू इज, अभी जो जून जुलाई की छुट्टियां हैं उसके अंदर आप जीएस फंडामेंटल्स करो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, एंड दिस इज द टाइम टू गो बियॉन्ड बुक्स। जो मैं आपको फिलोसफीज पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, जो आपको मैं किताबें पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा किताबें पढ़ने के लिए बोलूँगा, वो आप इनकॉर्पोरेट करोगे। जैसे सुधा मूर्ति की किताब है, जैसे देयर इज दिस बुक बाय अनिल स्वरूप, एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट। आप ऐसी किताबों से अपना वैल्यू एडिशन बढ़ाओ, ये आप चीज़ यूज़ कर पाओगे। थोड़ा सा गीता को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है, ये जो वैल्यू एडिशन है, ये आपको करना है। यस, दिस इज फॉर पीपल हु आर गिवन 4th सेम का अभी एग्जाम नहीं होने लिए, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू एडिशन करना है। एंड आप D3 मेंटोरशिप, आई टेल यू व्हाट दिस D3 मेंटोरशिप इज। आप D3 का पार्ट बनाओ। इनफैक्ट उन सबके लिए भी D3 है, जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी D3 है, बट उनके लिए ये जो D3 है वो यहाँ पर आके खत्म हो जाना चाहिए। यू कांट अफोर्ड D3 की क्लासेस इन दिस पर्टिकुलर फेज, ठीक है। तो आपको फेज 1 के अंदर आपको ये करना है। देन फेज 2 के अंदर जब आपका फिफ्थ सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, देन आपका जो ऑप्शनल है, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन ले रहे हो या आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन ले रहे हो, जो भी आप ऑप्शन ले रहे हो और आपका वही ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी है, तो यू विल हैव टू मैनेज योर ऑप्शनल प्रेप विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अगर आपका ऑप्शनल फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, तो आप अपने जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स है, आप वही लोगे जो मेरे ऑप्शनल में काम आएंगे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के केस में हमारे पास है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये दोनों यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आप ये दोनों ऑप्शनल लोगे। और जब आप इन ऑप्शनल के ऊपर काम करोगे, तो आप साथ में इसके यूपीएससी के 10 ईयर भी देखोगे। यू कांट जस्ट स्टडी ऑफ योर ओन, आप यूपीएससी के 10 ईयर भी देखोगे और अपना भी करोगे। सो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स आप देखोगे और यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखोगे, साथ में आपका D3 तो चल ही रहा होगा, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर्स चल रहा होगा। व्हाई एम आई सेइंग D3 हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये यहाँ पर मैं फेज 5 में बताऊंगा कि D3 का आपको क्या फायदा होगा। देन कम्स योर फेज 3, नवंबर एंड दिसंबर जब आपकी एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो एग्जाम्स के टाइम पे नो D3, all you need to focus is on your exams। and also जैसे आपके एग्जाम्स खत्म हो जाए,
आपको CUET PG का ओवरलैप देखना कि वी नीड अ प्लान बी। व्हाट इफ कि आपका सिविल्स नहीं हो। अगर मैं सिविल्स के चक्कर में पूरे टाइम पड़ा रहता तो मैं आज क्या होता, आज मैं एम्प्लॉयड कैसे होता। तो आई डिड माई मास्टर्स फर्स्ट एंड देन आई वेंट फॉर अदर थिंग्स। तो अगर आपका मास्टर्स अच्छी जगह पे हो जाता है देन डिले योर प्रोग्राम, देन डिले योर सिविल सर्विसेज का प्रेप एंड जॉइन D3 आफ्टर द एग्जाम्स। तो यहाँ पर आपको अपना सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद थोड़ा सा CUET PG के ऊपर थोड़ा सा काम कर, देन जनवरी टू अप्रैल अगेन आपका सेमेस्टर 6 शुरू हो जाएगा। आप अपना DSE उसी हिसाब से लोगे जो आपके UPSC में भी ऑप्शनल के अंदर भी आ रहे हैं, एंड दिस इज द टाइम टू एग्जीक्यूट योर प्लान बी। यहाँ पर आप अपना जो CUET PG का जो सिलेबस है, चाहे वो आप लॉ आपका अपने आपको लॉ एज अ बैकअप ऑप्शन लेना हो, चाहे आपको अपना MA इकोनॉमिक्स लेना हो या MA कोई और लेना हो, सो MA साइकोलॉजी करना हो, वट एवर यू वॉन्ट टू पिक अप, आई वॉन्ट यू टू I'll tell you what D3 is. What I want you to do is at this phase is आप नेट की किताब आती है, जो भी आप सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, नेट की किताब आती है, जैसे इकोनॉमिक्स में नेट होता है, फिलोसफी में नेट होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेट होता है। आप वो नेट की किताब लोगे और उससे 10 ईयर सॉल्व करके अपना CUET PG के लिए प्रिपेयर करोगे साथ में। Why I'm saying this is because what happens if you do not clear this examination? और अगर आपने CUET PG लिख दिया और आपका से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, JNU में हो गया, then it makes sense to delay your UPSC strategy for a couple of years. आपके पास एक मास्टर्स का बैकअप आ जाएगा। And with what we are going to do in our classes, what I'm trying to say is आकाश कि CUET जो है आपको मास्टर्स के लिए आज की डेट में एंट्रेंस का एग्जाम है। अब what I'm trying to say is कि why not keep a backup plan? हम जो पढ़ेंगे, एक D3 प्रोग्राम के बारे में बात बताऊंगा और फिर ऑप्शनल के बारे में बताऊंगा, जो हम पढ़ेंगे अगर आप ज्वाइन करते हो तो दैट विल कवर योर एंटायर ऑप्शनल, एटलीस्ट इकोनॉमिक्स एंड योर अदर थिंग्स। अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो आप खुद से भी योर टारगेट शुड बी, अगर आप यहाँ पर पूरा का पूरा ऑप्शनल के लिए प्रेप कर ही रहे हो अपने सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 के साथ, व्हाई नॉट गिव CUET का PG का एग्जाम। अगर आपका अच्छा कॉलेज में हो जाता है तो आप एक अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करो, उसका एक ब्रांड नेम लेके चलो और फिर वो आपको ब्रांड नेम जिंदगी भर हेल्प करेगा। आज की डेट में मेरा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ब्रांड नेम मुझे जिंदगी भर हेल्प करता है। जहां पर भी जाता हूँ मेरे पास एक चीज है कहने के लिए कि आई एम फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो मुझे बहुत हेल्प करती है चीज, और इसीलिए आपको जॉब मार्केट में भी हेल्प हो जाएगा। तो देयरफॉर आई वुड स्टिल सजेस्ट, अगर आपको बैकअप प्लान बनाना है, अगर आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं हुआ, JNU नहीं हुआ, तो ठीक है आप सीधा UPSC में पूछो, तब आप इग्नू ले लेना। अभी मैं फेज 6 में बताऊंगा तब आप इग्नू ले लेना। इग्नू से आप डिस्टेंस से आप मास्टर्स करो, बट मास्टर जरूर करो, क्योंकि उससे आपका एक एकेडमिक ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी प्रेप को तो ऑन रखो ही रखो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो थिंक ऑफ प्लान बी। द प्रॉब्लम इज इस मार्केट के अंदर, इस एरिया के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, बट कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं? That is how this is built. This exam is built. This exam is built on failure. Success तो बहुत कम लोगों का है। वो हम बोलते हैं ना, जो लोग इकोनॉमिक्स से हैं, हम क्या बोलते हैं कि we will reject the null hypothesis। तो ये जो एग्जाम है ये रिजेक्शन का ही एग्जाम है, ठीक है, बट ओनली प्रूवन अदरवाइज आप you will be selected। लॉ के केस में हम बोलते हैं innocent until proven guilty, ये बोलते हैं ना। Everyone is innocent. Everyone in this particular exam is meant for failure until proven that you are good enough. Do you have that mental strength? Do you have that discipline in you to clear this examination? It's not a rocket science, folks. It's not a rocket science. ये IIT JEE का एग्जाम नहीं है। आपको बहुत दिमाग नहीं चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए। मैंने अपने साथ के इग्नू वालों को निकलते देखा और खुद का निकलते नहीं देखा एग्जाम, तो इससे बड़ा तो मैं एग्जाम्पल आपको नहीं बता सकता। इग्नू के स्टूडेंट्स निकले हुए निकल जाते हैं और मेरे जैसे स्टूडेंट्स रुक जाते हैं, बिकॉज दे हैव द डिसिप्लिन इन देम। तो दैट इज व्हाट यू नीड। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक प्लान बी जरूर रेडी करना। इसमें ब्रेक ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, बट आइडियली आपको यहीं पे आपको अपना प्लान बी सेट कर लेना चाहिए, स्पेशली इफ यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। If you are inclined towards CAT, then you can give your CAT exam, and after CAT you can think. I have a student this year जो IIM से पास आउट है और उसने अपना IIM से करा और उसके बाद ये करा,
बट अगेन थोड़ा वैल्यू फॉर मनी देख लेना, क्योंकि आपने अपने MBA प्रोग्राम में ऑलरेडी यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर योर प्रेप. So think about that. Now coming to the other aspect, coming to one aspect that I wanted to cover is that some of you had asked me ki what is this D3 program. Now let me talk about this D3 program. Just a second. Give me 1 second, folks. Okay, I'll guide you with that.